चैप्टर 1 का हम फर्स्ट कर रहे हैं शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट का क्वेश्चन ये है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एजुकेशन ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो अभी मतलब अभी ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे ऐसा बीच बीच में से हम स्टार्ट कर रहे हैं, या मतलब बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा पर उसका आंसर किधर ना किधर अंदर ही रहेगा शॉर्ट में। तो जब भी आप पढ़ो ना तो ऐसा मत करना कि आप जो रेलेवेंट ना हो टॉपिक से वो लिखो, जो रेलेवेंट हो वही आपको पॉइंट टू पॉइंट हमेशा लिखने का ट्राई करना है, पेपर में भी या जिधर भी आप करो। तो ओके, तो हम रीड करते हैं पहले, फिर हाँ। During the early Vedic period, the content of education was based on sacred literature which was written in Sanskrit, which was not the language of the masses. The language of teaching was also Sanskrit. The Yajur Veda commands education for all classes, women notwithstanding. The Atharva Vedic states that all classes have an equal right to study the Veda. To enter Vedic school, it was prerequisites for the students of first the three varnas to perform Upanyat thread ceremony, and they had to observe brahmacharya for as long as they lived the school to study the Vedas. अभी ये स्टार्टिंग में ये लोग ने बोला है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन सेक्रेड लिटरेचर which was written in संस्कृत। मतलब आपको पता है पहले के, हाँ पहले के टाइम में संस्कृत का था वो, which was not the language of masses। मतलब masses in the sense सब लोग नहीं जानते थे संस्कृत को, बट तो भी वो वैदिक का कल्चर ही था कि वो लोग संस्कृत का लैंग्वेज लेंगे। The language of teaching was also संस्कृत, मतलब सिखाने का तरीका भी वो था, लिखाने का तरीका भी संस्कृत ही था। The Yajur Veda commands education for all the classes and notwithstanding. The Atharva Veda states that all classes have equal right to study the Vedas to enter the Vedic school. It was prerequisite for children of the three varnas to perform, और सिर्फ पहले के तीन वर्णा को अलाउड था, और उनको एक थ्रेड सेरेमनी करके ही वो लोग स्कूल में जा पाते थे। वो थ्रेड सेरेमनी को उपन्याना थ्रेड सेरेमनी कुछ तो बोलते थे। उसके बाद ही वो लोग अपने स्कूल में जा सकते हैं। They observe brahmacharya for as long as they live the school to study Vedas. There was an oral tradition of imparting knowledge, which was through not learning, enunciation and pronunciation, which was integral part of oral trading of learning. The aim of education was to sharpen intellectual as well as for character transformation. Most of the scholars hold the view that art of writing was known during this period. ये लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये लोग का मेन जो था, दिस वाज ओरल ट्रेडिशन ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। मतलब ये लोग का मेन फोकस था कि वो लोग ज्यादा बोलना और कैसे प्रेजेंट करते, कैसे हाँ कैसे उनका माइंड जो है वो शार्पन होता है, ये सब स्टडीज करके। बड़े बड़े स्कॉलर्स भी ये बोलते हैं कि ये जो आर्ट था, ये लोग का जो सिखाने का तरीका था, वो जो अब हम अभी भी जो कर रहे हैं उस हिसाब से वो ये पीरियड से आया है। मतलब वैदिक पीरियड से हम लोग ने ये लाया है, अर्ली वैदिक पीरियड से अभी तक मॉडर्न वर्ल्ड में ये चलते आ रहा है, क्योंकि ये आर्ट बहुत अच्छा था और ये लोगों को समझने लगा था कि हाँ इस हिसाब से करना है। The aim of education was to sharpen the intellectual as well as the character forming. Value was attached, being truthful, carrying out one's duty, dharma, devotion to the guru and one's parent, hospitality, faith, generosity. आप लोग को पता है कि अभी भी हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, गुरु को रिस्पेक्ट करो, फिर ट्रुथफुल धर्म, अपना जो ड्यूटी है वो निभाओ, या जो भी है ऐसी ऐसी चीजें जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं वो हम लोग को कहाँ से मिली है, वैदिक पीरियड से मिली है। The Shastriyas learned the art of warfare and administration. Vaishyas studied the trade of commerce. Shudras learned the architect and animal husbandry. The Brahman probably stayed in school until they attained mastery of 4 Vedas.
there were various centers of learning in this age of for preserve transmit of subsequent generation through Rashi's sages seers. They were known as Brahmanas, the processors of Brahman. हाँ, अभी ये इसके बाद आ गया कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग लेटर. तो अभी हमें लेटर का पूछा नहीं है तो हम वो लिखेंगे. तो मैंने अभी तक जो भी बोला वो पूरा एक शॉर्ट नोट है अर्ली वैदिक पीरियड के दीदी एजुकेशन. इसमें से और शॉर्ट किया वो मेरे पास है. हाँ, तो हाँ, इसको आपको शॉर्ट ही करना है. आपको डायरेक्ट पहले तो आपको बोलना है कि वो लोग का आर्ट ऑफ लर्निंग क्या था, वो लोग का लैंग्वेज कौन सा था, फिर वो लोग जो थे वो लोग को कौन सी सेरेमनी करनी पड़ती थी वो एजुकेशन मतलब स्कूल में एंट्री के लिए. फिर वो उन लोग ने सेरेमनी करने के बाद वो लोग को 4 साल पूरा ब्रह्मचार्य का फॉलो करना पड़ता था. फिर उसमें ये भी बोला है कि जो वर्णा सिस्टम है उसमें जो शूद्र है मतलब जो भी है क्षत्रिय वगैरह वगैरह उन लोग ने अपना अपना किस हिसाब से स्टडी किया. वो लोग को क्या स्टडी करने बोला, जैसे किसी को एनिमल हस्बेंड्री बोला तो किसी को ये बोला. तो ये सब बेसिक चीजें जो आपको लिखनी ही पड़ेगी कि कैसे वो लोग के टाइम पे पढ़ाई होती थी. तो अभी मैं आप लोग को ये आंसर मैंने आपको बताया तो सही किया. आंसर का ये क्वेश्चन का मतलब ये आंसर है कि ये लोग ने कैसे क्या किया. बट आप लोग को जब आप आंसर लिखते हो तो आपको ऐसा नहीं कि आप लिखते ही जाओ और बार बार सेंटेंस रिपीट करो. अभी जैसे ही हम आंसर्स का डिस्कस करें तो मैं आंसर वाइज ही बोलूंगी कि कैसे आंसर भी लिखा जाता है. तो हमेशा ट्राई करना. अभी जैसे आप अगर आप कोई क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट वगैरह और आपको लगता है कि आपका आंसर छोटा है बट पॉइंट टू पॉइंट है तो ऐसा नहीं कि आप उसको बड़ा चढ़ा के बोलो या रिपीट करो सेंटेंस, बिकॉज उससे मार्क्स कटता है. बिकॉज वो लोग सोचते हैं कि इसको आता नहीं इसके लिए वो आंसर रिपीट कर रहे हैं. पर हमें पता है कि ये लोग चाहते हैं कि हम बड़े बड़े आंसर लिखे तो मार्क्स दे. वो हम हमारी तरफ से हमें पता है कि ऐसा भी रूल है कि भाई बड़े आंसर लिखो तो मार्क्स मिलेगा. तो दोनों को संभाल के दोनों को चीजों को संभाल के आपको समझना चाहिए कि आपको पॉइंट्स कवर करने हैं बट रिपीट नहीं करने कोई भी पॉइंट्स. जैसे आपने एक बार बोल दिया कि वर्ना सिस्टम में शूद्र ये करते हैं क्षेत्रीय ये करते हैं तो आपको वापस रिपीट नहीं करना है कि हाँ ये लोग तो यही करते हैं वगैरह. क्योंकि बहुत सारे आंसर में हम लोग को बोला भी है, पहले भी हम लोग को बोला था कि रिपीट करते हो तो हमें लगता है कि आप लोग ने पढ़ाई नहीं की और आप सिर्फ आंसर को बढ़ाने के लिए करते हो. तो मैंने आंसर तो एक्सप्लेन कर दिया. अब आप लोग मुझे बताओ कि ये आंसर को याद रखने के लिए आप लोग ये जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगा उसको ही सुनोगे कि हम कुछ और हिसाब से भी कर सकते हैं फिर इसके एक्सप्लेनेशन के बाद. यूट्यूब से हम लोग यूट्यूब डाउनलोडर्स के जरिए उन ऑडियोज को डाउनलोड करके सेव कर लेंगे ना. हाँ, तो आप लोग जब भी आप लोग का कुछ एग्जाम या आप लोग जब भी फ्री रहो तो ट्राई करना कि आप ये आंसर पढ़ के एकदम ऐसा याद कर रहे हो. याद इन द सेंस मीनिंग समझ के याद कर रहे हो. बिकॉज मैंने मीनिंग के हिसाब से आप लोग को समझाया भी है. तो आपको फिर जब एग्जाम के टाइम पे ऐसा ना लगे कि मैंने रट्टा मतलब कोई कोई लोग क्या होता है कि आंसर थोड़ा याद करके जैसे हम लोग कभी कभी करते ही ये ऑब्वियसली. बट सोशियोलॉजी में थोड़ा ध्यान रखना कि अगर बहुत सारे आंसर्स है बहुत बड़े बड़े आंसर्स है रट्टा मारने से कंफ्यूजन होगा. आप वर्ना सिस्टम और क्या बोलते हैं ब्राह्मणाचार्य ये सब जो है ना ये कंफ्यूज हो जाओगे. इसके लिए प्लीज आप लोग समझ के थोड़ा लिखना आंसर्स. स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी है जिनको जिनको हिस्ट्री भी है वो लोग भी थोड़ा ध्यान रख के कर सकते हैं या जो भी. ओके, तो ये हमारा होता है फर्स्ट शॉर्ट नोट. और अगर चाहिए तो आई गेस प्रीति के पास कुछ इसके आंसर्स कुछ ऐसा रिटर्न अवेलेबल हो या कुछ पॉसिबल हो तो प्रीति आप लोग आपके ही मतलब क्लासमेट्स ही हो आप लोग अपने आप से डिस्कस करके शेयर कर सकते हो. बिकॉज हमारा चैप्टर 1 हुआ तो आई गेस मैं इसके ऊपर एक टेस्ट ले सकती हूँ. मतलब ज्यादा नहीं पूछूंगी बट आप लोग को आंसर करना पड़ेगा तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाना प्लीज. हम पता लगे कि हाँ हम मतलब फॉर्म वाइज टेस्ट लोगे कैसा ओरल लोगे? वो अभी ऐसे सबको
आपकी आवाज बार बार जा रही है, आधा बोल रहे हो आधा कट रहा है। अभी आ रहा है? हाँ हाँ अभी आ रहा है। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि देखेंगे गूगल फिर फॉर्म से में गया। लेना है, हम्म, तो हम देखेंगे गूगल फॉर्म में लेना है कि ओरली। वो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि आप लोग गूगल फॉर्म में भी करो, मतलब मुझे चाहिए कि आप लोग को समझे बस कैसे लिखना है और कैसे उस हिसाब से आंसर को याद रखना है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ आप एक्चुअली बराबर। गूगल फॉर्म बेटर रहेगा। ओरल में कैसा अचानक से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे नहीं नहीं, दिमाग में नहीं रहेगा। गूगल फॉर्म में है ना दीदी, लाइक एमसीक्यूज हो जाएगा, लेकिन है ना बिग हाँ आंसर्स है ना, वो हम लोग को पूछ के ही किया ना तो बहुत अच्छा रहेगा। मीन्स पता चलेगा कितना तक हम लोग को आ हाँ, गया। क्योंकि लेक्चर में भी ऐसा किया था हाँ। पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस साइंस का के। ऐसे ही और किया था। और मुझे और ऐसा नहीं कि आपको पूरा आंसर आना चाहिए, आप बस मुझे बता दो कि मुझे ये हिसाब से आंसर लिखना है, ये आंसर में ये इंक्लूड कैसे होना लिखना है, मेन चाहिए। मेन पॉइंट्स हाँ, ऐसा नहीं कि आपको याद करके आना है आंसर, बस मुझे पूरा समझना है कि आपको याद हुआ है कि नहीं। हाँ कट टू कट, मतलब नहीं, मतलब अपने से होता है ऐसा। हाँ, तो ऐसा नहीं, आप लोग डरना मत कि मतलब भाई टेस्ट होगा, तो ऐसा नहीं कि कोई आए ही ना फिर। हाँ ओके, अभी नेक्स्ट मेरा तो क्वेश्चन मुझे है। खुद नहीं पता आऊंगा कि नहीं आऊंगा। आना पड़ेगा आपको। देखता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। आई गेस आज मेरे से सिर्फ शॉर्ट नोट ही हो पाएंगे, बिकॉज मुझे थोड़ा एक अर्जेंट काम था। एक्चुअली मैं क्लास लेने वाली भी शायद इसका नहीं आंसर थी। एट पेज पर, कौन सा पेज पे? 8 नंबर, फर्स्ट हाँ पॉइंट, हाँ सेकंड पॉइंट। ओ हाँ। माय गॉड, कितना स्टेटस बड़ा ऑफ है। वुमन इन इंडियन सोसाइटी, उसमें ढूंढना पड़ेगा अभी कौन सा पीरियड है। ओह माय गॉड। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। स्टेटस ऑफ ह्यूमन डिक्टोरिएटेड, वो ही ना। ये वाला स्टेटस ऑफ वुमन क्वेश्चन इन क्या है? इंडियन स्टेटस सोसाइटी। ऑफ इंडियन सोसाइटी ना? नहीं, क्वेश्चन अलग है। मिडियल ह्यूमन पीरियड का है, ड्यूरिंग, मिडियल पीरियड, ड्यूरिंग द मिडियल पीरियड। स्टेटस ऑफ मेडिवल। ह्यूमन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल, ओके ओके। Status of women deteriorated in medieval India and invention to the central Asian. हाँ, मेडिवल किधर है यार? ये लोग है ना एकदम ऐसा कंफ्यूजन देते हैं ना। इसका भी पॉइंट निकलना चाहिए, ये एक साथ डाल देते सब। इसमें ना क्या दीदी, वो आपके पास वो वही पीडीएफ है ना, तो इसलिए बहुत। हम्म। टेक्स्ट बुक तो होता है ना इतना तो जल्दी बारीक, हो जाता है। हाँ ना, इतना बारीक बारीक है, ऊपर से मेरे को लगता है चश्मा भी है मेरे खुद। मेडिवल पीरियड किधर है यार? शिट। ब्राइटनेस इंक्रीज कर लो ना थोड़ा। हाँ, अरे यार, बहुत लफड़ा है। आपके पास अ, आंसर नहीं है इसका प्रीति? है पढ़ू क्या। हाँ पढ़ो ना, मुझे इधर ऐसा कुछ मिला तो कब पता चल जाएगा। Status of human deteriorated in medieval India. Invention from the Central Asian region, long with Zerilus. Okay, long with zealous Brahmanical iron law were main causes for the degradation. मिला मुझे, मिला। वहाँ पे। हाँ, ये लास्ट ही है, नेचर ऑफ हाँ मिला मिला, एजुकेशन था मुझे ना, भी मिला। उसके ऊपर के 2 मिला, पैराग्राफ है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ। तो अभी ये देखो, ये आंसर शॉर्ट है बट इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया होगा। हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि जब शॉर्ट रहे तो। The status of women deteriorated even further in medieval India. Invasion from the Central Asian region, along with the zealous Brahmanical iron laws, were the main cause of this degradation. Freedom of movement was curtailed. Knowledge of scriptures and literacy was denied to them, and her status was reduced by being dependent on men throughout her lifetime. Only women from the upper caste and the uh, aristocracy were given education in private.
Widow remarriage which was permitted in the Vedic period came to consider taboo. Women continued to be excluded from family inheritance. Practice of child marriage, sati, purdah system and division system made women the object of exploitation. The patriarchal joint family, the customs of polygamy and early marriage all contributed to smoothing the free development and growth of women. अभी मैं आपको ये है ना, ये देखो ये शॉर्ट नोट थोड़ा शॉर्ट है बट एक्चुअल में इतना ही होना चाहिए शॉर्ट नोट, ज्यादा भी आप लिखना है वो नहीं है. तो आपको एक एक पॉइंट इसका समझाती हूँ तो आपको याद रहे. द स्टेटस ऑफ वुमेन डिटोरिएटेड इवन फर्दर इन मेडिवल पीरियड. मतलब इवन फर्दर मतलब पहले तो था ही खराब बट मेडिवल पीरियड में और खराब होने लगा. डिक्टोरिएटेड बोले तो डिटोरिएटेड मतलब नीचे जाना, खराब होते जाना, डिक्रीज होना. ओके. Invasion from Central Asian region along with the zealous Brahmanical iron laws. मतलब सेंट्रल रीजन ऑब्वियसली हमारा ये जो है एशियन जो हम है, और जो हमारा ब्राह्मणिकल आयरन लॉस था, मतलब जो ब्राह्मण लोग पहले ब्राह्मण आए थे ना, तो वो लोग का तो था ही कि अपर कास्ट लोअर कास्ट ऑलरेडी बना लिया था वो लोग ने. वो लोग उस हिसाब से ही वुमेन को ट्रीट कर रहे थे कि लोअर कास्ट की हो तो ऐसा, अपर कास्ट की हो तो ऐसा. तो उस वो दो के हिसाब से ज्यादा वो एक्चुअली दो मेन कॉज थे, दैट इज इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन along with the zealous Brahmanical iron laws. ये दो थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया वुमेन का कम करना, मतलब वुमेन के इसको कम करना. जीलियस इन्वेशन बोले तो दीदी, zealous Brahmanical iron laws हाँ. मतलब एकदम बोलते हैं ना एकदम ऐसा जो कंसिडर नहीं होना चाहिए बट कंसिडर हुआ है, इतना खराब था ऐसा. मतलब आपको ऐसा सेंटेंस या कैसे बहुत खराब बोलते हैं ना, मतलब हाँ हाँ मतलब वो होना नहीं चाहिए था बट वो बट हुआ, हो उसकी गया वजह बाय से चांस. डेग्रेडेशन बढ़ने लगा. हाँ, क्योंकि लोगों को बाद में समझ में आने लगा कि इतना भी वुमेन के साथ नहीं करना चाहिए था, पर वो ऑलरेडी हो चुका था. ब्राह्मण लोग ऑलरेडी ला गए थे कि भाई ऐसे ट्रीट करना है, वैसे ट्रीट करना है. ओके, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट होगा. फर्स्ट पॉइंट होगा कि वुमेन का डिग्रेडेशन मेडिवल पीरियड में ज्यादा खराब हुआ. क्यों खराब हुआ? बिकॉज सेंट्रल एशियन रीजन के वजह से जो वहां से आया, और जीलियस ब्राह्मणिकल आयरन लॉस के वजह से, वो दो मेन कॉज थे जिसके वजह से डिग्रेडेशन बढ़ा. फिर थर्ड पॉइंट रहेगा फ्रीडम ऑफ वुमेन वाज कर्टेल्ड, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड लिटरेसी वाज डिनाइड टू देम एंड ओके, इतना पहले फ्रीडम ऑफ वुमेन वाज कर्टेल्ड, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड लिटरेसी वर डिनाइड. फ्रीडम ऑफ वुमेन वर कर्टेल्ड मतलब एक बोलते हैं ना फ्रीडम जो ऐसा ओपन था, उनको जो फ्रीडम था वो उनको बंद कर दिया, उनको फ्रीडम नहीं मिला. फिर उनका कर्टेल नॉलेज, मतलब बंद करना ना. हाँ कर्टेल मतलब उसको ऐसा ऐसा बंद कर देना उनके लिए. फिर नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड लिटरेसी, जो स्क्रिप्चर्स जो पहले के टाइम पे पता है ना स्क्रिप्चर्स वगैरह कितना था, आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो वो लोग को डिनाई कर दिया पढ़ने को, वो लोग को एजुकेशन डिनाई कर दिया वुमेन्स को पढ़ने को. फिर उसके वजह से उनका, और उसके वजह से वो स्टेटस डिनाई, रिड्यूस हो गया. हाँ हाँ वो तो हुआ ही डिनाई, बट उस स्टेटस भी वो लोग का रिड्यूस हुआ. और वो लोग को स्टेटस रिड्यूस होने के वजह से उनको अपने जो हस्बैंड थे या उनके घर के जो बड़े हेड थे, जो मेन थे, उनके ऊपर डिपेंडेंट थे वो लोग पूरी तरह से. ओनली वुमेन फ्रॉम अपर कास्ट एंड एरिस्टोक्रेसी वर गिवन एजुकेशन. मतलब अपर कास्ट के जो लोग थे उनको ही बस वो एक फ्रीडम दिया एजुकेशन करने का. फिर दूसरा दीदी एरिस्टोक्रेसी मतलब वो बड़ा कास्ट है ना, एकदम हाईएस्ट क्लास जो सर्टेन सोसाइटीज में रहते हैं, वो लोग को मतलब ऐसा टाइटल्स दे देते हैं ना, ऐसा मतलब ऐसा हम लोग एरिस्टोक्रेसी जैसे अभी के टाइम पे हम महाराजा बोल सकते हैं ना, रानी महाराजा, वो लोग बड़े बड़े लोग फैमिली रॉयल. हाँ, तो उन लोग को मिलता था एजुकेशन, वो भी प्राइवेट में, मतलब अपने अपने में. ओह माय गॉड. ओके. फिर विडो रीमैरिज वाज परमिटेड. विडो रीमैरिज परमिट किया था वैदिक पीरियड में, बट मतलब स्टार्ट किया था ना.
हाँ, विडो रीमैरिज परमिट हुआ था वैदिक पीरियड में, बट उसके बाद विडो रीमैरिज को खराब माना गया मेडिवल पीरियड में। वो लोग ने बोला कि नहीं, ये बराबर नहीं है, बार बार मतलब ऐसा शादी वगैरह करना जो भी है। फिर वुमेन कंटिन्यू टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फैमिली इनहेरिटेंस। अभी वुमेन को हर एक चीजों से ऐसा अलग कंसिडर किया, मतलब जैसे कुछ अच्छा हो रहा है तो वुमेन को नहीं लाना, बिकॉज वो लोग को लगता था कि वुमेन एक बर्डन है। उस हिसाब से प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज भी हो रहा था, सती हो रहा था, दैट इज फिर पुरदा सिस्टम एंड देवा सिस्टम मेड द वुमन द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। उस हिसाब से एक्सप्लॉइट होने लगा, मतलब वुमेन को बेच, मतलब अच्छा वर्ड नहीं, मतलब ऐसा बुरा वर्ड नहीं, बट वो लोग को एक्सप्लॉइट करने लगे। द पेट्रियार्कल जॉइंट फैमिली। हाँ, वो पर्दा सिस्टम बोले तो पर्दे में रहने का रहता है, मतलब चेहरा नहीं दिखा सकते एंड ऑल वो सब चीजें। हाँ, मतलब घर पे रहने का और कुछ करने का नहीं, और फिर वुमेन को घूंघट में एक्सप्लॉइट रहने करने का का। एंड हाँ ऑल वही सब चीजें। हाँ हाँ। फिर द पेट्रियार्कल जॉइंट फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली में ऐसे मेन ही ज्यादा रहेंगे ना, क्योंकि वुमेन को तो कितने लोग तो जन्म भी होने नहीं देते थे। द कस्टम्स ऑफ पॉलीगैमी एंड अर्ली मैरिज। अभी आपको पॉलीगैमी का मीनिंग बताते हो। पॉलीगैमी, मैंने पढ़ा था पॉलीगैमी। हाँ, आप लोग को रहेगा पॉलीगैमी, सब हाँ कुछ दीदी, रहेगा, वो ना polygamy, monogamy। एंटोगेमी पॉलीगैमी सब 11th में था। हाँ, पॉलीगैमी मैं इज वन कास्ट। हाँ, स्टेट ऑफ मैरिज टू मेनी स्पाउसेस इज, मतलब स्पाउसेस मतलब एक मैरिड विथ हस्बैंड का मच मोर ज्यादा मेनी वाइफ वाइफ। होना। हाँ हाँ ऐसे। हाँ, एंड अर्ली मैरिज, मतलब पहले के टाइम पे एक हस्बैंड का ज्यादा वाइफ होना चलता था, बट एक वाइफ अगर उनके हस्बैंड अगर कोई हिसाब से मतलब गुजर भी जाते तो उनको विडो, मतलब विडो रीमैरिज करना अलाउड नहीं था, बट पोलीगैमी अलाउड था। ऑल कंट्रीब्यूटेड टू स्मूथर। पॉलीगैमी मतलब? पोलीगैमी मतलब एक हस्बैंड की ज्यादा वाइफ रहना। ओके। हाँ, तो ये सब इतने सारे पॉइंट्स थे, इतने नेगेटिव पॉइंट्स आप लोग ने सुने ही होंगे, मैंने अभी आपको बताया। वो एकदम ही बंद कर दिया डेवलपमेंट और ग्रोथ वुमेन का, मतलब एकदम ऐसा बोलते हैं ना, एकदम बैकवर्ड चले गए, मतलब एकदम पीछे चले गए। तो उसके लिए अभी भी आप देख रहे हो, अभी भी हम बहुत पीछे हैं, बट इतना पीछे भी नहीं है ऐसा। तो हाँ, आप लोग को समझे सब पॉइंट? हाँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा हाँ शॉर्ट नोट होता है। अभी है ना राइट राइट डिफरेंसेस। डिफरेंस। हाँ, राइट डिफरेंसेस वगैरह में है ना, एक्चुअली थोड़ा अपने को पहले करना पड़ेगा, बिकॉज ये ओरल का काम नहीं है, पहले तो अपने को बनाना पड़ेगा उसको, फिर ही हम उसको पढ़ पाएंगे, वरना कंफ्यूजन होगा कि ये पॉइंट डालना है, ये पॉइंट नहीं डालना है। मुझे एक्चुअली थोड़ा उस हिसाब से अगर टाइम मिलता है तो मैं बनाऊँ भी, बट ना। दीदी आपको कभी टाइम मिलेगा वो उससे हिसाब से बोले तो मैं आपको फोन करके आंसर्स दे, क्वेश्चन आंसर दे दूंगी वो एमसीक्यूज। एमसीक्यूज ना, अभी हाँ अगर चाहिए तो हम थोड़े कर सकते हैं, अगर अभी है, क्योंकि अभी मेरे पास अभी थोड़ा 5 to 10 मिनट्स ही है, क्योंकि थोड़ा एक मीटिंग आ रहा है, तो मेरे को उसके लिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, तो हम उस हिसाब से अगर चाहिए तो कर सकते हैं थोड़ा एमसीक्यूज। एक्चुअली अभी तो नहीं, क्यों? बैटरी लो है मेरा, वाह, कभी भी बंद हो सकता है। ओनली 4 या 3% होगा। आज हाँ, आज इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ था ना। 12 बजे आप